So dear children, today I am here with you all to discuss the cell organelles of cell for class 9, that is fundamental unit of life. So today we are going to discuss about cytoplasm. So cytoplasm is what? It is the semi-fluid which is present in the cell which holds all the cell organelles together, right? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कुछ characteristics discuss करेंगे, then we will discuss the functions of cytoplasm. Okay. तो सबसे पहले, as I told you, this is what the semi-fluid matrix. These are the characteristics. Semi-fluid matrix. This is a semi-fluid matrix between plasma membrane and nucleus. Between plasma membrane and nucleus. Okay. So this is the one point, right? And it has two components. अब cytoplasm के भी दो components होते हैं. It has two components. कौन कौन से दो होते हैं? एक होता है cytosol, which is the liquid part, जिसको हम बोलते हैं cytosol. Always remember, this is the one of the component, right? It is the liquid or fluid part of cytoplasm. It is the liquid or fluid part of cytoplasm. क्योंकि उसी का कंपोनेंट है, तो दिस इज द लिक्विड पार्ट. मैंने आपको बोला था कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है, राइट? ये होता है ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, राइट? एंड ऑफ साइटोप्लाज्म नियरली वी कैन से इट्स ट्रांसपेरेंट. बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, कोई कलर्ड नहीं होता इसमें. नियरली ट्रांसपेरेंट. और इसको हम बोल सकते हैं also called cytoplasmic matrix. Cytoplasmic matrix. We can also say this cytoplasmic matrix, right? So this is the fluid part which we have already discussed. Okay. And one more thing is that it contains 90% of water. As in the cell, all the cell organelles are present. As I told you, this is present in the cell in which all the cell organelles are present, and it contains 90% of water. It contains 90% of water in it. 90%. So 90% of water, and we can say some one biomolecules such as minerals, जितने भी होते हैं वो सारे इसी में present होते हैं, right? These all are present inside it. You can note it down. And cell organelles are present in cytosol. तो जितने भी cell organelles होते हैं, they all present in cytosol, right? Okay. Then after this we will discuss about the functions. That what are the functions of cytoplasm? So what are these functions? Basically, in class 9, we will discuss about three major functions. Like we know that in cell, a lot of metabolic activities are taking place inside the cell. So this is the place where all the metabolic activities in the cell takes place. Okay. So first point, what we can write? We can write is seat. It occurs as seat.
एक जगह है जहां पे जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो सारी होती हैं, वेयर मेजॉरिटी ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज take place, right? Secondly, अब जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, दे नीड द रॉ मटेरियल्स, राइट? उनको कुछ ना कुछ मटेरियल्स तो चाहिए, तभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विल टेक प्लेस। तो जितना भी ये रॉ मटेरियल्स है वो कौन प्रोवाइड करता है? साइटोप्लाज्म। You can also say it also provides raw material for metabolic activities. Provides raw material for metabolic activities. जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी उन सबके लिए ये रॉ मटेरियल जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा? हमारे पास साइटोप्लाज्म. दिस इज द सेकंड मेजर फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट? Okay, as I told you, there are three, and it also, अब जैसे सेल के अंदर हमें पता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है उसने, तो एक्टिविटीज के लिए हमें एंजाइम्स भी चाहिए, हार्मोन्स भी चाहिए, तो वो कौन सप्लाई करता है? साइटोप्लाज्म. So supplies hormones and enzymes. जहां भी सेल के अंदर हार्मोन और सेल की सप्लाई की जरूरत पड़ती है, वही साइटोप्लाज्म सबसे आगे होता है हेल्प करने के लिए, right? So these are the three major functions. First, it occurs as a seed where majority of metabolic activities takes place inside the cell, और उन एक्टिविटीज के लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है, और सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उनको हार्मोन्स या एंजाइम की जरूरत पड़ती है अपनी एक्टिविटीज के लिए, सब काम करते हैं, सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है सेल ऑर्गेनल्स की, तो उनको हार्मोन्स और एंजाइम्स की सप्लाई भी हमारा साइटोप्लाज्म ही करता है, राइट? Okay. Now next we are going to discuss the very important cell organelles that we are going to discuss. The next is nucleus. Part of cell, that is nucleus. In class 8 we have already studied about nucleus, right? So nucleus में actually क्या क्या होता है? Nucleus is very important. Class 8 we studied about small structure of the nucleus and the components which it contains. Also we studied about that it contains DNA, chromosomes, right? Genes which carry the information from one generation to another, right? So now we will discuss in brief all the components one by one here. So what we can say, it is the लार्जेस्ट न्यूक्लियस जो है वो क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल. अब जो सेल्स हैं मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं, वी कैन क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल जो पहले होते थे सिंपल, राइट? यूकैरियोटिक जिनमें मल्टीपल होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो उनमें लार्जेस्ट कैसे होगा? इसी वजह से हम बोलते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है वो हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो क्या है? न्यूक्लियस, राइट? न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है सबके अंदर. ओके, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था इसको, न्यूक्लियस को, राइट? इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी किया था. अब इसके पास कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि हमने बोला है कि स्ट्रक्चर इज वेरी बिग, तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस सेपरेटली वन बाय वन. तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले हमारे पास है न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियर एनवेलप, राइट? न्यूक्लियर एनवेलप के बाद हमारे पास है न्यूक्लियर मैट्रिक्स. न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास है न्यूक्लियोलस.
right? Then we have chromatin material. Chromatin material, right? So these are the four major components of nucleus which we are going to discuss one by one. Okay. तो इनको डिस्कस करने के लिए आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस विद ऑल दीज कंपोनेंट्स सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, राइट. So let's draw the structure of the nucleus. Then we will explain these points one by one. तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर इस तरीके से थोड़ी स्फेरिकल शेप में, राइट. यहाँ से इस तरीके से like this. Right. So this is the external structure of nucleus. अभी न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं हुई है. इसके अलावा इसमें हम बनाएंगे थ्रेड्स. और मैं बताऊंगा आपको व्हाट आर दीज. Right. So these are the thread-like structure. We can say these are the molecules of RNA, ribonucleic acid, right? और जो बाउंड्री वॉल है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. डबल लेयर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये एक्सटर्नल लेयर है और ये इंटरनल लेयर है अंदर, राइट. और ये जो स्पेसिस है यहाँ पे which can be easily seen, ये वाला इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स. न्यूक्लियर पोर्स because this nuclear membrane is not regular. वहां पे थोड़े थोड़े स्पेसिस हैं. वो भी क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा अभी. Then we have a dense a spherical figure here that is known as nucleus, right? Nucleus. And these entangled structures, जो हमारे पास entangled structures हैं, इनको हम बोल सकते हैं कि this is chromatin material. Chromatin material भी बोल सकते हो आप, right? ये हो गया हमारे पास इसके कंपोनेंट्स. अब हम इसमें देखोगे कि आपने जो आउटर लेयर है, इनर लेयर तो ठीक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, बट आउटर लेयर इज नॉट रेगुलर. इसमें थोड़ी स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं और यहाँ पे ना डॉट्स होते हैं इस तरीके से. So what are these? These are ribosomes. Ribosomes क्या होते हैं? Protein factory, which helps in the synthesis of proteins in the cell, right? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स. न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियर सैप भी बोल सकते हैं इसको. तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियर सैप में क्या होता है? इट्स अ प्योर फ्लूइड. फ्लूइड मटेरियल होता है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस, और इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म में बोलते हैं. What we can say, clear fluid present in the nucleus, also called न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म भी हम इसको बोल सकते हैं, राइट. और इसके बाद जितना भी रॉ मटेरियल्स है, सारे प्रोटीन्स, एंजाइम्स, वो इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं, राइट. सो वी कैन से कंटेन्स रॉ मटेरियल्स, राइट. रॉ मटेरियल्स जितने भी होते हैं, एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड मेटाजाइम्स, वो सारे इसी में. एंजाइम्स,
proteins and metal ions. Metal ions means DNA, RNA. DNA, RNA. DNA means deoxyribonucleic acid और ribonucleic acid. RNA means ribonucleic acid. तो अभी हमें ये समझना है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल मैंने बोला है आपको, क्रोमेटिन मटेरियल इज प्रेजेंट. तो क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? अगर आप इस स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखो, ये जो एंटेंगल स्ट्रक्चर्स है, एंटेंगल स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल. जब ये क्रोमेटिन मटेरियल डेंस हो जाती है, मतलब मिल जाती है आपस में, तो ये एक क्रोमोसोम बनती है. कैसे? जब ये मिक्स हो जाएंगी आपस में तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बनाएंगी. राइट? इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम. राइट? ये हमारा हो गया क्रोमोसोम. जो ये पॉइंट है जहां से ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर. क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर. राइट? और ये जो एंटेंगल स्ट्रक्चर्स है, ये क्या होती है? क्रोमेटिड्स. ये दोनों जो है स्ट्रक्चर्स, दैट इज क्रोमेटिड्स. राइट? अब होता क्या है इसमें कि जब हम लोग सोचेंगे कि डीएनए और आरएनए भी इसके अंदर ही होते हैं, जीन्स भी इसके अंदर है, वो कैसे होते हैं? अगर आप ये जो हमारे पास लोब्स बनी हुई है क्रोमेटिड्स की लोब को पकड़ के आप ऐसे खींचोगे थ्रेड की तरह, तो मेरे पास इस तरीके की कुछ शेप आएंगी. मतलब रोप की तरह शेप बनी हुई आएगी. इस तरीके से रोप की तरह शेप बनी हुई आएगी, लाइक दिस. की दो रस्सियां हैं जैसे आपस में उलझी हुई हैं इस तरीके से. राइट? तो ये जो मेरी होती है, ये हमारी क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है डीएनए. दैट इज डबल हेलिकल. राइट? और इसका अगर आप कोई भी एक यूनिट मान लो तो ये होता है जीन्स. जीन्स का क्या काम है? दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 8 कि दे इनहेरिटेड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. कि जो मेल से है वो स्पर्म आता है, फीमेल से वो एग आता है, दे फ्यूज टुगेदर, and that is why we are having some common characteristics as our parents, like color of skin, eyes, hair, anything. Right? So कुछ भी हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा मैच होगा. Right? So I hope it's clear about nuclear matrix. Nuclear envelope. न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप जैसे कि इसके नाम से क्लियर है. अब न्यूक्लियर इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल. तो न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर ये सारी स्ट्रक्चर कंटेन है. जितने भी सारे ये कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियस के, वो सारे न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर हैं. बट दिस न्यूक्लियर एनवेलप है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ऑल द अदर सेल ऑर्गेनल्स. वो जो न्यूक्लियस के मटेरियल है, न्यूक्लियस के जो कंपोनेंट्स हैं, उनको क्या करता है? साइटोप्लाज्म से थोड़ा सेपरेट रखता है. मींस दूसरे सेल ऑर्गेनल से सेपरेट रखता है, बट नॉट आइसोलेटेड. आइसोलेटेड नहीं होता, क्योंकि यू हैव सीन कि दीस आर द पोर्स. स्पेसेस है यहाँ पे, रेगुलर नहीं है ये लोग. राइट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट रेगुलर, स्पेसेस आर देयर. इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स. जिससे साइटोप्लाज्म में से कोई भी प्रोटीन या न्यूक्लियस से भी चीज बाहर जानी है तो इट कैन गो फ्रॉम दिस न्यूक्लियर पोर. तो बिल्कुल अगर आइसोलेट हो जाएगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द सेल टू वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस. ओके. देन आफ्टर दिस न्यूक्लियर मैट्रिक्स वी हैव न्यूक्लियोलस. जो मैंने बनाई है ये राउंड स्ट्रक्चर्स, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, यू कैन सी दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूक्लियोलस क्या है? दैट इज डेंस. डेंस भी है और डार्क. डेंस एंड डार्क कलर होता है हमारा. डार्क ग्रैनुलर स्ट्रक्चर. डेंस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन. Without limiting membrane. Without limiting membrane, right? And it is rich in RNA and proteins. क्योंकि राइबोसोम्स हैं इसमें, राइट? न्यूक्लियस के, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? रिच इन
this. Then we have chromatin materials. क्रोमेटिन मटेरियल जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ है क्रोमेटिन मटेरियल। तो क्रोमेटिन मटेरियल क्या करता है? क्रोमेटिन का मेन काम क्या है? इट अकर्स इन नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस। कि जब भी सेल डिवाइड होता है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो इंटेंगल स्ट्रक्चर्स है वो कंडेंस हो जाएंगी, कंबाइन कर जाएंगे एक दूसरे के साथ। वो कब कंबाइन करते हैं? वो कंबाइन तब करते हैं जब सेल डिवाइड होता है, राइट? तो सेल डिवाइड होना बहुत जरूरी है, तभी हमारे पास जीन्स और ये क्रोमोसोम्स निकल के आते हैं। तो इट अकर्स इन नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस। कि जब तक ये सेल डिवाइड नहीं होगा, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होगा, तब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, थ्रेड हैं, ये सारे क्रोमैटिन मटेरियल तब एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से अकर्स इन नॉन डिवाइडिंग। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो देन दीस विल कन्वर्ट इनटू दिस क्रोमोसोम्स। अकर्स इन नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस, राइट? सबसे पहले तो हमने ये बोल दिया कि न्यूक्लियस है वो डिवाइड नहीं होगा, राइट? और कैसे रहेगा ये? एज फाइन फिलामेंट। एज स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, एज फाइन फिलामेंट्स। एज इनको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट्स को क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स, राइट? देन आफ्टर दिस वी नो दैट दीज फाइबर्स, जो ये फाइबर्स हैं, अब इन्हीं से हमारे पास हमें पता है कि क्या बनता है। दीज फाइबर्स लाइज, कैसे रह रहे हैं ये हमारे पास? स्ट्रेट नहीं है, दीज आर क्रिस क्रॉस। दीज फाइबर्स लाइज क्रिस क्रॉस, मतलब एक दूसरे के साथ उलझे हुए होते हैं। क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस का मतलब ये, राइट? तो क्रिस क्रॉस होने की वजह से हमें कैसे अपीयर होते हैं? गिव द अपीयरेंस ऑफ, एक डिफ्यूज नेटवर्क की अपीयरेंस देते हैं। गिव अपीयरेंस ऑफ डिफ्यूज नेटवर्क, राइट? देख के लगता है कि दिस इज अ डिफ्यूज नेटवर्क, राइट? देन वी कैन ऑल्सो से कि क्रोमेटिन जो हमारे पास फाइबर्स हैं वो क्या है? बाद में जब जुड़ जाते हैं उसके बाद क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम्स। व्हाट वी कैन से, क्रोमेटिन फाइबर्स, ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, इनफैक्ट दीज आर ग्रेटली एक्सटेंडेड क्रोमोसोम्स। इनफैक्ट आर greatly extended chromosomes. Greatly extended chromosomes, right? So these are the components of the nucleus which we have already discussed now. Okay. After this, now we have the functions of nucleus, because nucleus is the very important cell organelles. So अब हम one by one कुछ functions हैं इसके वो we can discuss out. तो सबसे पहले functions आ गए, functions of nucleus. जैसा कि हमने बोला है कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, सो इट कंट्रोल्स all metabolic activities, controls all metabolic activities of cell. Metabolic activities of cell, जितना भी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है, राइट? अब दूसरा है कि जैसे ही जो भी वो सेल है, सेल के अंदर जिस कंपोनेंट को जरूरत है ग्रोथ की, तो वो क्या करता है? डायरेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स, हमें पता है कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में भी जरूरी चाहिए, उसी तरह सेल को भी जरूरत होती है प्रोटीन्स की। तो जो न्यूक्लियस है वो गाइड करता है, डायरेक्शन देता है कि किसी सेल ऑर्गेनेल को अगर जरूरत है प्रोटीन्स की तो वहां पे वो उसको पहुंचाता है। तो नेक्स्ट व्हाट वी कैन से, इट ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ ऑफ सेल, ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ ऑफ सेल। सेल की जो है वो ग्रोथ करता है,
कैसे करता है, क्या डायरेक्ट करता है? जैसे मैंने आपको बताया कि सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ, इसकी सिंथेसिस होगी हमारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन की, स्ट्रक्चरल प्रोटीन को वो डायरेक्शन देता है कि कहां पे रिक्वायरमेंट है और कहां पे जाना, राइट? जैसे कि राइबोसोम्स हैं इसके पास, तो व्हाट वी कैन से इट टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, जो सेल के अंदर प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कौन बनाने में हेल्प करता है? न्यूक्लियस टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है एंड क्रोमोसोम्स हैं, तो ये क्या करता है? कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स से जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आते हैं या हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, सो दीज ऑल आर कैरिड बाय दिस इन फॉर्म ऑफ जीन्स, right, in form of genes, right? So dear children, these all were the functions and the components of the nucleus, right? And I hope this video will help you out to understand the structure of nucleus, components of nucleus and functions of nucleus. Thank you so much.